Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, all Ma'am. the students. Good evening, Raman. Good evening, sir. Good evening, Palak. Good evening, sir. Good evening to all those who have joined, those who are about to join, those who will stay in the class for the complete time. 17 students are here, all right. I think the Good strength evening, is going sir. to increase today, right? It was the lecture of Tejaswita ma'am and Shazib sir also today. Yes, sir. Yes. Okay, so what was the strength that attended the class? Sir, 2021. 2021, all right. 17 are already there in the class right now. I'm waiting Yes, for the sir. remaining students also to join and then we'll start the class. Okay, meanwhile, the rest of the students join. Before I proceed with the further content to discuss in this class, I would wish the students to take a glimpse of whatever we have discussed in the last two classes. Okay, and apart from that, let me just ask you one thing. हम लोगों का दो classes का discussion complete हुआ, right? We have discussed about the meaning, concept of the marketing management. As well as हमने उसके regarding कुछ practical चीजों को भी discuss किया. So hope you people have started making some kind of a notes also with you. लिख रहे हो आप चीजों को notes में जो मैं बताता चल रहा हूँ उनके बारे में अपने पास भी थोड़ा सा जो उसका gist होगा उसको note करते हुए चलिएगा और अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा. Am I clear? Yes, sir. Nandini, are you there? Nandini, I'm not able to hear you, Nandini. Your mic is off. Yes. Okay. Probably Nandini has left. No problem. Fine. Actually, Nandini had a photograph on the screen. और ऐसा लग रहा था literally वो जैसे वीडियो ऑन करके बैठी है, but she was not moving. So I was a little stuck. How can it? I mean, how is it possible? Okay, fine. So talking about the marketing management, I have discussed the marketing management concept to be as CCD. So what was the concept of CCD yesterday? We had discussed about. So creating, communicating, and delivering. Very good. Okay. So whenever we talk about marketing management and if we say that it is CCD, then CCD states about creating, communication and delivery, right? तो जब भी आप marketing का as a communication discussion करते हो, that means somewhere 90% आप advertising management का जिक्र कर रहे हो. समझ में आती है इतनी चीज? The creating part goes all about the products and its evolution, right? The delivery part takes about the entire delivery process, the logistic process, wherein we try to deliver our product to the customer, right? Depending on his need. अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो शायद मैंने आपके संग ये वाली चीज डिस्कस करी है. एक कोटेशन बोलने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. That the solution of every problem is a business. दोबारा से रिपीट करूंगा. Solution of every problem is a business opportunity. Should I repeat again? Solution of every problem is a business opportunity. लिख लीजिए अपने पास कहीं पर इसे. What I stated, I'll repeat it again. Solution of every problem is a business opportunity. कैसे होगा? अब मैंने ये लाइन तो बोल दिया, इससे जो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करिए एंड गिव मी एन आंसर. हाउ कम? कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम रही हो, फिर उसका जो सोल्यूशन रहा हो, क्या उसको किसी ने अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया है? एनी एग्जांपल? सर लाइक सर मैगी का सर बीच में बैन हो गया था सर, उसमें एक इंसेक्ट सर आ गया था शायद, तो बैन हो गया था. फिर सर उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्या ली. बैन हो गया था? सर मैगी बैन हो गई थी ना बीच में. ओके. और सर फिर उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज वापस लिया सर, बिकॉज जो और मैगी के सर सब्स्टिट्यूट्स थे सर, लाइक यिप्पी एंड नूडल्स सर, जितने भी थे सर, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे मैगी की डिमांड को. तो सर जो फिर वापस आई मैगी, तो सर वो अपने एडवर्टीजमेंट सर बहुत एक्सएग्रीगेट फ्लॉन्ट करके आ रही थी सर, मतलब एड में. तो सर उन्होंने एक तरीके से फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया उसमें. ओके, बट डियर समवेयर आई वांटेड टू नो कि इसमें कहां पर प्रॉब्लम है, फिर उसको कैसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया गया है. दैट आई वांट टू नो. सर प्रॉब्लम ये थी कि सर उसको जो और सब्स्टिट्यूट्स थे सर, बाकी जो नूडल्स वगैरह आ रहे थे, यिप्पी वगैरह सर, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. जितनी डिमांड मैगी की थी वो तब भी एक एज अ सब्स्टिट्यूट होके उसको सर कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है.
तो सर Okay. फिर Any other command student? सर दिया आपके एग्जाम्पल पे भी मैं आऊंगा. आप ही के एग्जाम्पल में ये जो लाइन मैंने बोली है, इसी का जस्टिफिकेशन हिडन है. मैं बताऊंगा कि कैसे है. ठीक है. ओके सर. स्मृति वाज सेइंग समथिंग. यस सर, जैसे नेटवर्क्स का इशू था, जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छे नेटवर्क्स नहीं थे, तब जियो ने सोल्यूशन, मतलब जियो एज अ सोल्यूशन आया मार्केट में कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई भी करेगा अनलिमिटेड डाटा के साथ, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ, फ्री टिल दिसंबर. उसके बाद फिर दिसंबर से एक्सटेंड होके मार्च हुआ, उसके बाद उसके मतलब उसने रुपीस लेना स्टार्ट किए उस चीज पे. तो फिर उसका उन्होंने उस नेटवर्क. फ्री चीज को सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट कर दिया, राइट? यस सर. ओके. अच्छा, इसी जगह पे आप टेलीकम्युनिकेशन की बात आई गई है, जहाँ स्मृति ने एग्जांपल दिया है जियो का, उसी जगह में एक चीज आप लोगों को पूछना चाहूंगा. आजकल आप देख रहे हो कि टेलीविजन पे एक एड आ रहा है वी का. वी. यस सर. Right, a new company entering in the market, whereas it is not a new company but more a combination of Vodafone and Idea. Vodafone and Idea. Yes sir. Right, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. Okay, fine. There was some audio issue from some student side, I think. Okay, no problem. Fine. Any other student? Solution of every problem is a business opportunity. Any other example? सर Yes, Shivani. जैसे अभी जब हमारे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था तो हमारा चाइना से ट्रेड बंद हो गया था. Right. और पीपीई किट वगैरह चाइना से काफी आती थी अभी रिसेंट टाइम में, बट जब ट्रेड बंद हुआ तो पीपीई किट आना बंद हो गई. तो हमारा Very इंडिया जो good. बनाता था वो पीछे ही रहता था इन मामलों में कि अबाउट बहुत हाई कॉस्ट होगा, कैसे होगा. और चाइना का जो मटेरियल था बहुत लो कॉस्ट पे हमारे इंडिया में मिलता था हम लोग को. Right, right, very चाइना nice. से ट्रेड बंद हुआ तो मैं इंडिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना सामान बेचे. जो उन्होंने पीपीई किट बनाई, मास्क Very good, बनाए, very good. एंड Yeah. वो हमारे इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और हमारी मार्केट में बहुत बड़ा. और आई थिंक एक न्यूज भी आई थी कि हमें इंडिया का प्रोडक्शन इतना हाई हो गया कि हमें बाहर के देशों में हम ट्रेड कर रहे हैं, अपना Right, सामान exactly. बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हमें किसी और देश की जरूरत नहीं पड़ी वो पर्टिकुलर सामान लेने के लिए. ठीक है, वेरी नाइस. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा. देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी यहाँ पे निकल के आया जो शिवानी ने हम लोगों को दिया अबाउट द पीपीसी किट. तो मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं. अभी हम लोग कोई भी क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस कर रहे हैं एंड यू गॉट टू नो अबाउट सम पर्टिकुलर एग्जांपल, इट्स बेटर किसी बुलेट पॉइंट में अपने पास वो एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट इट वुड बी मोर इजी फॉर यू पीपल टू कीप इट इन माइंड. एम आई क्लियर? Okay, so it was a very good example that somewhere we stopped the import of the products coming from China, and that became a business opportunity for people in India who are the manufacturers of the same products, right? So they started producing the same thing in India as well, and that became a business opportunity for them. All right. So who else would like to give an example? सर जैसे ये पबजी वगैरह बैन हुए इंडिया में, तो फिर फौज वगैरह कोई नया ऐप भी आ रहे हैं, और जैसे Exactly, right. बैन हुई तो बाकी भी कोई एप्स वगैरह आए, तो वो भी इंडिया की अपॉर्चुनिटी हुई. मतलब ठीक है, वेरी नाइस. राइट, opportunity पबजी बाकी बैन होने के लोगों बाद को. अक्षय कुमार ने ये प्लान किया कि वो फौजी नाम से एक गेम ऐप लेके आएंगे, हाँ. right? That can also be considered as a game, as a business opportunity as well, right? Any other example? Yes. मुझे लगता है नंदिनी की साइड से कुछ ऑडियो इशू है. Yes, Mansi, you're giving some example? Yes, sir. Please go ahead. सर एक्चुअली जब ये कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो कि ऑनलाइन नहीं हो रहे थे. लेकिन धीरे धीरे जब कोरोना के लॉकडाउन पीरियड बढ़ता गया और लोगों को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हुई, तो कई सारे लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाया, जिससे Right. उनका बिजनेस ना ही नॉर्मल के अकॉर्डिंग से भी बढ़ के काफी और ज़्यादा अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो गया. ठीक है, वेरी गुड. ओके, फाइन. सो अभी वी डिस्कस सो मेनी एग्जांपल्स हियर, राइट? अभी मैं दोबारा से वापस जाऊंगा. देखो, शिवानी ने ऑलरेडी एक ऐसा एग्जांपल दिया जिसमें देयर इज नो मोर नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट? इट वाज सेल्फ अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं क्या नीड थी कि हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम अकरिंग इन इंडिया, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली हमारा चाइना से थोड़ा सा डिपेंडेंसी हमें कम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंडिया में ही प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा. क्लियर? ओके. अगर मैं एग्जांपल पे वापस जाता हूँ, दिया ओली जो एग्जांपल दे रहे थे कि मैगी में एक बार कुछ नो सम इंसेक्ट वाज देयर एंड दैट वाज द रीजन कि मैगी को बैन किया गया. अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज थी जहाँ पे शायद दिया बाकी के कॉम्पिटिटर्स का नाम लेकर के कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी. एक छोटा सा चीज आपको याद दिलाऊंगा मैं, जो येपी नाम से नूडल्स आए मार्केट में, राइट? आप देखो, इनिशियली जब वो मार्केट में आए, दे वर नॉट वेरी टफ कॉम्पिटिटर टू मैगी,
Reason being because Maggie has been a kind of a addiction, kind of a taste to youngsters, right? I believe it has covered a huge market share and people are so addicted to it. I feel since the childhood only I've been eating Maggie oftenly, right? सही. So other than that, अगर आप देखो तो एक प्रॉब्लम रहती थी मैगी की, कभी हमारे टिफिन में अगर हमारे पेरेंट्स ने मैगी बना के दे दी है 1%, तो जब तक हम कॉलेज जाके खाते थे ना, तो अगर आप उसको निकालोगे किसी प्लेट पर तो एग्जैक्ट शेप में लंच बॉक्स के निकल के आ जाएगी बाहर. तो दैट वाज द रीजन की स्टिकी हुआ करती थी, राइट? और येपी ने अपनी पूरी ब्रांडिंग करी है नॉन स्टिकी नूडल के नाम से. समझ में आया? ध्यान से समझने की कोशिश करिए. मैगी का जो एक उन्होंने लूप होल निकाला, जो उसका ड्रॉबैक निकाला, वो था कि ये स्टिकी नूडल्स हैं, अगर ये थोड़े टाइम के लिए आप रख देंगे तो ये आपस में बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं एंड दे नो समटाइम फील बैड टू ईट. एम आई क्लियर? तो आपने देखा कि येपी नूडल्स जब वो आए बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर नहीं थे मैगी के, बट स्टिल जस्ट उन्होंने इसी पॉइंट को देखते हुए अपनी पूरी ब्रांडिंग कैसे करी, नॉन स्टिकी नूडल के बेसिस पे. दूसरा उन्होंने ड्रॉबैक क्या फाइंड आउट किया मैगी में, कि मैगी एक्चुअली जो 2 मिनट में जैसी मैगी दिखाते हैं टीवी पर, अगर आप उसे एग्जैक्ट वैसा बनाना चाहेंगे तो शायद 2 मिनट नहीं लगते, बिकॉज यू नीड a lot of time, you know, a lot of good time to cut all the vegetables and then to cook it accordingly. Honestly speaking, मैं 2 मिनट में जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, I never give my so much efforts to cut the vegetables and all that. I normally take it, cook it in pan only with the water. मतलब it looks too plain. ऐसा लगता है a girl without makeup, something like that. मैगी की जो हालत होती है उस समय पे विदाउट वेजिटेबल्स जो यूज होती है. ओके, सो व्हाट येपी एक्चुअली कंसीडर्ड टू बी, जब उसने पहला वाला तो कर लिया नॉन स्टिकी नूडल्स, दूसरा वो जो अपना मसाला लेकर के आए, स्पाइस लेके आए, उसमें दे हैड लिटिल वेजिटेबल्स आल्सो कट इन इट, ताकि अगर आप उसको ऐड करते हो तो क्या होता है, जनरली उसमें स्पाइसेस के साथ साथ आपको छोटे छोटे वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं, राइट? तो इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए येपी ने अपनी पूरी ब्रांडिंग करी एंड येपी केम एज अ गुड कॉम्पिटिटर टू मैगी दीज डेज. समझ में आती है? But that was a problem that youngsters were facing with the product and that became a business opportunity for somebody else. Clear हो गया दिया यहाँ पे? ये सेम एग्जांपल जो आपने दिया था उसी से मैंने निकाल के वाली चीज बताई है. फाइन, ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट कि अभी हम लोगों ने कल परसों में जो पूरा डिस्कशन किया मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, वो था एक आइडिया से स्टार्टिंग लेकर के, कि मार्केटिंग कैसे स्टार्ट होती है, एक जीरो लेवल से स्टार्ट होती है, एक आइडिया से शुरू होती है, बट समवेयर दैट आइडिया इज रिलेटेड टू द नीड, वांट्स एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर. Am I clear? Okay. Yes, so everybody has studied the concept of need, wants and demands in the economics? Yes, sir. Okay. So who would like to define the concept of need, wants and demand? And what is the difference in it? How would somebody like to define it? Sir, needs are basic requirements which we need in our daily life. Without this, we can't live. And wants are those when we fulfill our needs. So wants generally arises and demand जब एक इंसान की wants needs पूरी हो जाती है तो उसकी इच्छा और बढ़ने लगती है, वो और दूसरी चीजों की तरफ आकर्षित होने लगता है, तो फिर that is known as demand. Okay, fine, all right. That was a description given, that was the explanation given by Anjali here. Any other student who would like to define need, wants and demand? Sir, a need is basically our basic requirements. So what we need, like sir, shelter, food and water. So when we have a buying capacity to buy it, sir, it becomes our want. And sir, basically when we have money to buy it, sir, that it becomes our demand. But buying capacity and having the money is almost the same thing. There's no difference. Sir, like then wants and demand becomes the same thing only in that case. Sir, in wants, sir, we have a capacity to buy it, but sir, in demand, you're getting confused in only one point. You are keeping capacity of buying and having money in pocket. Yes, so sir. That is similar thing, right? You're just missing one concept here. Any other student? Yes, Shivani. तो हम नीड, वांट एंड डिमांड को अभी रिटन सिचुएशन से भी कनेक्ट कर देते हैं. लाइक मार्क हो गए, हमें मार्क चाहिए ही चाहिए और अच्छे क्वालिटी के चाहिए, ठीक है, वो हमारी नीड है, और हमारी वांट भी है दैट हमें वो चाहिए. एंड वो जब बाइंग कैपेसिटी ऐसे हो जाता है, जिन जो छोटे लोग हैं बिलो पॉवर्टी में भी वो ना खरीद पाए, क्योंकि मार्क 300 के भी आ रहे हैं, लाइक N95, N99. Exactly. तो वही है कि उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, तो मार्क भी 2 क्वालिटी में हो गई, लोअर क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी. तो दे आर very good.
वो ये में वो बाइंग उनकी नीड भी हमारी नीड भी हमें खरीदने नाउ द टाइम हमें वो चाहिए, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। हम बिना मास्क लगाए बाहर नहीं जा सकते। और हमारी डिमांड और मार्केट में अभी जब ये कोरोना आया था डिमांड बहुत कम चल रही थी हमारी मार्केट में कि मास्क नहीं है, कहीं पे मास्क नहीं मिल रहे हैं, और वहाँ पे मास्क के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए थे, लाइक बाइंग के लाइक 300-400 पर मास्क। राइट, इससे कनेक्ट हो सकता है ये चीज, नीड वेरी वांट गुड, एंड बाइंग प्राइस। ultimately, right, exactly, very good. Okay, so what I would try to like to tell you here, जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया नीड वांट्स एंड डिमांड में कहीं ना कहीं एक तो वो चीज जो हमारे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकती है, दैट कैन बी कॉल्ड एज नीड, और समवेयर जब उसको परचेजिंग पावर से कनेक्ट करते हैं तो दैट बिकम्स अवर डिमांड, राइट। एक एग्जांपल के बेसिस पे इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। समवेयर शिवानी वाज क्वाइट करेक्ट इन द एग्जांपल दैट शी हैज गिवन। ओके, टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ सेम एग्जांपल, फॉर आज की डेट में ड्यू टू कोविड मास्क हैव बिकम द utmost importance, राइट। तो अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है, इफ वी रियली डोंट वांट द कोविड वायरस टू गेट कंज्यूम्ड बाय अस, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें मास्क कैरी करने, राइट। अब वो हमारी नीड है, राइट। आप समझने की कोशिश करो, मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल लेकर के चलूंगा तीनों स्टेजेस पर। अगर मुझे अपने आप को वायरस से प्रोटेक्ट करना है तो मुझे चाहिए मास्क, यानी कि मेरी नीड है, क्लियर। अब आती है सेकंड स्टेज, वांट। मेरी रिक्वायरमेंट वही है कि मुझे अपने आप को वायरस से बचाना है, लेकिन वांट्स का मतलब क्या है, मास्क चाहिए, लेकिन मास्क अलग अलग तरीके के आते हैं मार्केट में, क्लियर रहती चीज। मास्क अलग अलग तरीके से कैसे आते हैं, आपको वो ब्लू कलर 3 लेयर मास्क भी मिल जाएगा, आपको वो व्हाइट कलर के जो विद कैप चल रहे हैं वो मास्क भी मिल जाएंगे, N95 97 हर तरीके के मास्क नो मार्केट में अवेलेबल है, वो भी मिल जाएंगे। तो वांट्स का मतलब है द अवेलेबल ऑप्शंस टू सेटिस्फाई अ नीड, लिख लीजिएगा कहीं पर। नीड मतलब अ कॉमन प्रोडक्ट दैट कैन फुलफिल अ रिक्वायरमेंट, लिख लीजिए अपने पास किसी जगह पर, ज्यादा बेटर रहेगा। नीड मतलब अ कॉमन प्रोडक्ट। सर हाँ, लिकर हमारी वांट में आता है या नीड में आता है? सॉरी सर लिकर होता है, लिकर हम्म, वो हमारी वांट में आता है या नीड में आता है? इट कम्स इनटू योर वांट्स। नीड आपकी हो सकती है, मे बी यू वांट सम काइंड ऑफ एन एडिक्शन, नो सम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशा चाहिए आपको, इंटॉक्सिकेशन। इन माय टर्म्स अगर मुझे नशा चाहिए, ओके आई कैन बी पैशनेट टुवर्ड्स माय सक्सेस, मुझे सक्सेस का भी नशा हो सकता है ना। तो नीड है इंटॉक्सिकेशन, अगर आपको लग रहा है आपकी नीड है इंटॉक्सिकेशन, तो वांट्स है उसके अलग अलग, मे बी स्मोकिंग, मे बी लिकर। अभी देखो बहुत अलग अपर लेवल की बात चल रही है यहाँ पे। शेख मोहसिन कंट्रीब्यूटेड एंड टुक द डिस्कशन टू द नेक्स्ट लेवल, इजंट इट? और N95 जो मास्क है उसको WHO ने मना कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है यूज एग्जैक्टली करने राइट, का। वेरी गुड, राइट। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया शेख ने, कि जिसमें कैप्स लगे हुए आ रहे हैं मास्क में, वो की बैन कर दिया गया, उसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज सम होल्स टू गेट द एयर पास ऑन, और अगर एयर पास हो सकती है तो बट ऑब्वियसली बात है वायरस पास ऑन हो सकता है, राइट। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, नीड मेरी क्या थी, मुझे अपने आप को वायरस से प्रोटेक्टेड रखना है तो मुझे चाहिए मास्क। अब बात आती है मास्क में भी अवेलेबल ऑप्शन है, तो वो अवेलेबल ऑप्शन जो एक प्रोडक्ट के अंदर आते हैं पर एक ही नीड को सेटिस्फाई करते हैं, वो हो गए वांट्स, ठीक। तीसरी चीज क्या होती है, डिमांड। अब उन अवेलेबल ऑप्शन में से जो ऑप्शन ऐसा है, जो प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मैं बाय भी कर सकता हूँ, जिसके लिए मेरी बाइंग कैपेसिटी है, वो मेरी डिमांड हो गई। Am I clear? ओके, अब इसको हम 12th से रिलेट कर देते हैं। मान लिया आपने 12th कंप्लीट किया है, 12th कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, वो आपकी नीड हो गई, ठीक। अब ग्रेजुएशन करने में किसी 12th पास आउट स्टूडेंट जो कि कॉमर्स से पास आउट करके आया, वो बीबीए भी कर सकता है, बीकॉम भी कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जाके कर सकता है, किसी दूसरे कॉलेज से भी कर सकता है। Am I clear? ओके, मान लेते हैं वांट्स में आपने डिसाइड कर लिया अलग अलग कोर्सेज फ्रॉम अलग अलग कॉलेजेस। Am I clear? डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ से कितने कितने में आपको पढ़ रहा है। अब डिमांड में आ जाता है कि मुझे इस कॉलेज से ये वाला पर्टिकुलर ये कोर्स करना है क्योंकि यहाँ से मेरी अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है। मान लिया एमबीए करना है, एमबीए अच्छे कॉलेज से ही करना है, अच्छे कॉलेज में एमबीए केसीएमटी से करना है, एमबीए डीयू से करना है, एमबीए आईआईएम से करना है, बट एट द एंड मेरी पॉकेट किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अलाउ कर रही है मुझे, वो मेरी डिमांड हो जाएगी। Am I clear? तो नीड, वांट्स एंड डिमांड समझ में आती है, फाइन। अब हम बात करेंगे फर्दर अबाउट नेचर एंड स्कोप ऑफ द नो मार्केटिंग मैनेजमेंट। फॉर दैट आई नीड टू ओपन द पीपीटी दैट आई हैव, गिव मी सम टाइम।
Okay, is it visible now? Is the PPT visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right, so we were discussing about the same presentation yesterday, and I told you something about Mr. Philip Kotler. So who is he? The father of marketing. Father of Very marketing. good. Father of marketing management. Very good. Okay. Right. So this was something that we had discussed in the yesterday's class. Okay. About consumer needs, wants and demands, we have already discussed. अभी आपको मेरे ख्याल से याद रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. Fine. But we will be talking about nature of marketing today. अगर आप किसी भी particular concept के nature की बात करते हो तो ultimately you talk about some of its features, right? नेचर का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि नेचर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्या है या करेक्टरिस्टिक्स किसी कॉन्सेप्ट के क्या है, तो बात ऑलमोस्ट सेम है. Yes, sir. क्लियर हो गई इतनी चीज? ओके. Yes, sir. नो, अब जैसे मान लो इस कॉन्सेप्ट को मैं नेचर और मार्केटिंग पे बात करना बाद में शुरू करूंगा. मैं नेचर शब्द को आपको पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे अल्टीमेटली क्यों यूज हुआ है. अब किसी भी कॉन्सेप्ट में आपने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, हमेशा आता है कि नेचर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. तो क्यों अल्टीमेटली ये वर्ड यूज किया? मानो अगर मेरे से किसी भी पर्टिकुलर कोई बंदा पूछता है कि आप उस स्टूडेंट का नेचर मुझे बता दीजिए कैसा है ना? मान लिया किसी ने मेरे को नॉर्मल एक फीडबैक लिया कि मुकुल सर ये बता दीजिए कीर्ति स्टूडेंट कैसी है, कीर्ति का नेचर कैसा है ना? तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कीर्ति के फीचर्स बताते हुए तो उसका नेचर बता दूंगा मैं. ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है उसकी, राइट, और बहुत शार्प लगता है जो भी लिखा हुआ होता है. ठीक है, बाकी ये पढ़ने में हमेशा अच्छी है, और जो भी पर्टिकुलर उसकी स्टडी पैटर्न है उसमें हमेशा आगे रहती है, कुछ ना कुछ जवाब देती है वो. बाकी वो बात अलग है, थ्रू आउट द डिस्कशन सुनती बहुत ज्यादा रहती है, बोलने में थोड़ा कम आता है. तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ फीचर से कोरिलेट करते हुए बच्चे का नेचर बता दिया. सिमिलरली अगर मैं किसी से पूछता हूँ मार्केटिंग का नेचर क्या है, तो मुझे मार्केटिंग के फीचर्स से ही तो मैं उसका नेचर बता पाऊंगा, राइट. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. सबसे पहला क्या है? एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग. थ्रूआउट द प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट वी कीप ऑन एक्सचेंजिंग समथिंग. क्या एक्सचेंज कर रहे हैं पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज द आइडिया अबाउट एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. आइडिया में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? आइडिया में आई एम ट्राइंग टू एक्सचेंज द व्यूज और द रिव्यूज और द फीडबैक्स फ्रॉम माय कस्टमर कि अगर ऐसा कोई आइडिया मैं मार्केट में लेके आऊं तो क्या ये वर्क करेगा. कल मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, फिजिबिलिटी एनालिसिस. यू हैव टू फिगर आउट हाउ मच फीजिबल योर बिजनेस आइडिया इज टू इम्प्लीमेंट, है ना. मैं अगर बोल दूं ठीक है एक लार्ज लेवल पे, एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैं एक मास प्रोडक्शन की कंपनी खोलना चाहता हूँ, so I don't think so that would be feasible enough, because आज की डेट में मास्क को प्रोड्यूस करने वाली ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना. तो एक ऐसे मार्केट सेगमेंट में एंटर करना जहां ऑलरेडी देयर आर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग द मास्क, और वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोकेशन पे काम कर रहे हैं, देन व्हाई वुड आई टेक द रिस्क ऑफ बीइंग इन द सेम डोमेन, और दैट टू स्पेशली फॉर द होल वर्ल्ड, राइट. तो फिजिबिलिटी की बात आती है, तो एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग में मैंने सबसे पहले बात करी, टॉकिंग अबाउट आइडिया. आइडिया में यू आर एक्सचेंजिंग the thoughts, reviews and feedbacks from your customers to normally judge about the feasibility of your idea. Second comes, it is customer oriented. कल भी मैंने एक बात करी थी, your customer is not less than a king, not less than a god. Why did I use this term god? मैंने कल आपको तीन चीजें बताई थी, that why do we call customer a god for our business. क्या बताया था मैंने कल? Generator, operator and destroyer. Very good, right. So we do call our customer the god of the business, reason being because they are the generator of the business, operator of the business and destroyer of the business. If they wish, उनकी अगर कोई नीड होगी तभी हमारा बिजनेस जनरेट होगा, मार्केट में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा. उनकी नीड होगी तभी वो परचेज करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, वो ऑपरेट करते जाएंगे हमारे बिजनेस को, और अगर उनकी नीड खत्म हो गई और उन्होंने बाय करना बंद कर दिया तो वो हो गए डिस्ट्रॉयर. क्लियर हो गई इतनी चीज? ओके. थर्ड कम्स मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ओनली. भाई उनकी नीड को देखते हुए ही मेरे दिमाग में आइडिया आएगा, और उनको सेटिस्फेक्शन देना ही, उनसे ही सेल्स जनरेट कराना कंटिन्यूअस, यही मेरा मोटिव रहेगा, है ना. अब देखो फॉर एग्जांपल आज की डेट में मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लिया, खरीदने के बाद मैं उससे सेटिस्फाई हूं या नहीं हूं, ये भी आज की डेट में मार्केटिंग का एक प्राइम फोकस है. क्यों है मार्केटिंग का प्राइम फोकस? आप देखो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले लोग पोस्ट सेल सर्विसेज पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे. उनका काम था मात्र चीजों को बेच देना, राइट. ओके.
बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि मार्केट में चीजों को बेचने के बाद मेरा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है ये भी मुझे जानना बहुत जरूरी है। और उसके सेटिस्फेक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है, मुझे उसे पोस्ट सेल सर्विसेज देनी है, यानी कि जब उसने खरीद लिया उसके बाद उसे सर्विसेज देना बहुत जरूरी है। मैंने शायद आपको एक एग्जांपल दिया हो पहले कि जो हिंडई कंपनी है, राइट, द मोमेंट आई बॉट माय कार, जिस समय मैंने अपनी कार परचेस करी थी, उसके बाद से जब पहली सर्विस ड्यू होती है, दूसरी सर्विस ड्यू होती है, आप यकीन मानो मुझे इतनी चिंता नहीं हुई कि मुझे अपनी जाकर के सर्विस करानी है कार की, जितनी चिंता शायद कार वालों ने कर ली होगी। शोरूम से मेरे पास हर हफ्ते के अंदर 4 बार कॉल आता था कि सर आपकी सर्विस ड्यू है, आप आके करा लीजिए सर्विस, राइट। एंड लिटरली एक टाइम पे आई वाज सो पिस्ड ऑफ दैट आई हैड टू से कि मैम मुझे चाहिए होगी सर्विस, मैं अपने आप आ जाऊंगा, प्लीज आप मेरे को दोबारा कॉल मत करिएगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कस्टमर को ये चीज महसूस कराना कि आपके परचेजिंग के बाद भी आपका फीडबैक और आपकी चीज की वैल्यू हम कर रहे हैं, हमें आपको सर्विस देना, आपको सेटिस्फाई रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर उन्होंने वो काम उस समय नहीं किया होता तो मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा होता ये वाला। समझ में आती थी चीज? और कहीं ना कहीं यही वो चीजें हैं जो आगे चल के मेरा माइंड मेकअप करेंगी। भाई कार की जो लाइफ साइकिल है उन्होंने मुझे जो बताई है वो 15 साल है, ठीक है। मान लो 15 साल के बाद या 15 साल से पहले जब भी मैं दोबारा माइंड मेकअप करता हूँ कि ठीक है मुझे दोबारा कार परचेस करनी है, तब भी मेरे दिमाग में ये सारी चीजें होंगी और ये सारी चीजें एक बेस बिल्ड करेंगी कि अब दूसरा ब्रांड कौन सा होना चाहिए जिसको मैं परचेस करूं। अगर ये चीजें मेरे दिमाग में रहेंगी तो पॉसिबिलिटी है कि दोबारा हो सकता है मैं दोबारा से कोई हिंडई का मॉडल पसंद कर लूं और परचेस करूं। समझ में आती है? सो समवेयर इट स्टार्ट्स विद द कस्टमर एज वेल एज एंड्स विद द कस्टमर। ओके, तो मॉडर्न मार्केटिंग प्रीसीड्स एंड सक्सीड्स प्रोडक्शन। मैंने आपको ये चीज बहुत सिंपल भाषा में समझा रखी है कि मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरुआत होती है, स्क्रैच से स्टार्ट होती है। मतलब जब बिल्कुल प्रोडक्ट दिमाग में आया है, आइडिया उसका दिमाग में आया है, तो ये जो पहली लाइन है मॉडर्न मार्केटिंग प्रीसीड्स प्रोडक्शन। प्रीसीड्स प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन होने से पहले। भाई प्रोडक्शन होने से पहले क्या होता है? आप रॉ मटेरियल मंगाते हो, रॉ मटेरियल होने से पहले क्या होता है? आप उसके बारे में पूरी एक लिस्ट तैयार करते हो, लिस्ट तैयार करने से पहले आप कोई मेथड पहले खोजते होगे, तभी तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें आनी है। और मेथड से पहले क्या होता है कि एक आइडिया मेरे दिमाग में होना चाहिए। तो बहुत सारी 5-6 ऐसी स्टेजेस हैं जो कि प्रोडक्शन से पहले आती हैं। तो मार्केटिंग बिल्कुल पहली स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। फिर इन्होंने आगे ये भी लिखा हुआ है सक्सीड्स प्रोडक्शन। सक्सीड्स प्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे कि प्रोडक्शन के बाद भी चलती रहती है कंटिन्यूस। जब तक कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, मैं उसको रीसेटिस्फाई ना करा दूं, और तब तक जब तक कि वो मैं उसको एक लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट ना कर दूं। भाई मुकुल सर ने अगर कार परचेज कर ली तो हिंडई वालों का काम था कि वो तब तक अपने कस्टमर को सर्विस देते रहेंगे जब तक कि वो हमारे लॉयल कस्टमर में ना कन्वर्ट हो जाए, जब तक कि वो दूसरों को एग्जाम्पल, दूसरों को रेफर ना करने लग जाए कि हाँ ठीक है तुम भी हिंडई खरीदो, अच्छी कार है। समझ गए आप? अल्टीमेटली अदरवाइज क्या होता है, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, आप मेरे पास आए, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं है प्रोडक्ट को लेकर के, मैं आपको मना कर दूंगा कि भाई मत लेना, मैंने परचेज करके देखा था। समझ में आ गई? बट कंपनी का काम क्या है? कंपनी को मार्केटिंग तब तक चलानी है जब तक कि कस्टमर कन्वर्ट ना हो जाए फ्रॉम अ परचेजर टू अ लॉयल परचेजर, कि वो दोबारा भी खरीदेगा तो हमारा ही ब्रांड खरीदेगा, इनफैक्ट दूसरों को रेफर भी करेगा। क्लियर? काफी बार होता है कि आप कोई मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने आने के बाद अपने फ्रेंड को मना कर देते हो, धोखे से भी मत चले जाना, ठीक है? या अपने फ्रेंड से कहते थे कि हाँ ठीक है देख के आना, मूवी बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब क्या है? मूवीज भी तो किस चीज पे चल रही है? कस्टमर रिव्यूज पे तो चल रही हैं। अगर मूवी की स्क्रिप्ट आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, यू विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड एनी ऑफ द अदर पर्सन इन योर कॉन्टैक्ट कि आप जाके देखो या मत देखो, ठीक? नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड बट फॉर श्योर, क्योंकि एक आर्ट बेस्ड प्रोसेस है। मैंने आपको कल बताया था कि मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज एन आर्ट, अ यूनिक प्रोसेस, राइट? कुछ ऐसा यूनिक, कुछ ऐसा क्रिएटिव जो हम करते हैं हमारे कस्टमर के दिमाग में अपनी जगह बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अप लेके जाने के लिए और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, राइट? एक आर्ट बेस्ड प्रोसेस है, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, बट समवेयर इसका एक अपना एक गोल ओरिएंटेशन है। बट फॉर श्योर मैंने कल 5-6 डिपार्टमेंट्स की बात करी थी, राइट? अगर मैं आप लोगों को याद दिला दूं तो HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, लेकिन सबका काम एक ही वजह से चलना है, वो है मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो रही है तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी और बाद में उसकी जो मार्केट में जगह है वो बन पाएगी। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आ गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब ये थोड़ी सी चीज कॉन्फ्लिक्टिंग है। मैंने कल क्लास में आपसे बोला कि मार्केटिंग एक आर्ट है और इस पॉइंट में लिखा हुआ है मार्केटिंग इज अ साइंस ऑल्सो। अब ये साइंस कैसे है? साइंस स्पेसिफिकली ये पैराडिम वाइज रहती है। मैंने क्या बोला यहाँ पे? पैराडिम वाइज रहती है। कहने का मतलब है अगर एक कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल मार्केट में आ गया है, एक एरा मार्केट में आ गया है, तो उस एरा स्पेसिफिक के लिए कुछ चीजें उसी वे में चलेंगी। यानी कि जब मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे हुई थी, और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता था कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बने रहोगे।
क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर कहता है कि जब मैं खरीदने जाऊं मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो मार्केट में प्रोडक्ट कब मिल पाएगा? जब 24/7 अवेलेबिलिटी होगी, और 24/7 अवेलेबिलिटी कब होगी? जब आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्ले जी जो कंपनी है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे। पार्ले जी मात्र एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें बंदा हो ना हो, कोई दूसरे लोग काम कर रहे हो, तीसरे लोग काम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। 24/7 into 365 कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता रहता है पार्ले जी बिस्किट्स का। आप किसी भी समय चले जाइए, आपको फ्रेश पार्ले जी बिस्किट्स खाने के लिए मिल जाएंगे किसी भी समय पे, दैट टू फ्रेशली बेक्ड। आप चाहो तो बनते हुए भी देख सकते हो। रुद्रपुर में पार्ले जी इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद विजिट किया था वहां पे। नहीं? ओके, बट आई विजिटेड ड्यूरिंग माय बीबीए एंड आई गॉट टू सी द प्लांट कि कैसे वहां पे कंटीन्यूअस प्रोडक्शन होता है। इट वाज अ फैबुलस प्रोडक्शन प्रोसेस लेआउट था उनका। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा आपने, लेआउट होते हैं अलग अलग तरीके के, प्रोसेस लेआउट होता है, फिक्स लेआउट होता है, ये पढ़ा है? सर प्लांट लेआउट, हाँ राइट, प्लांट लेआउट में पढ़ा होता है। प्लांट लेआउट के अंदर बताते हैं मशीनरी लेआउट कैसे होता है, यस सर, है ना? तो प्रोसेस लेआउट यूज किया हुआ है पार्ले जी वालों ने। उनका पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है पूरा ऑटोमेटेड है। बस आपको रॉ मटेरियल डालना है, रॉ मटेरियल के बाद आप सीधे पैकेट उठा लो, बिल्कुल कार्टन में रखे हुए, पैक्ड। इतना ज्यादा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इनफैक्ट वो लोग रोबोटिक आर्म्स का यूज कर रहे हैं। बीच में अगर कोई भी बिस्किट डिफेक्टेड हो जाता है और टूट जाता है बीच में से, तो क्योंकि उन्हें 99.99% की क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है, जैसे हम कहते हैं 6 सिग्मा क्वालिटी प्रोसेस और 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल्स, राइट? 6 सिग्मा का नाम सुना है आप लोगों ने? 6 सिग्मा का नाम सुना है आप लोगों ने? नो सर। तो आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। आईएसओ का जैसे नाम सुना होगा आपने, आईएसओ का, ना? आईएसओ 9001, 2002 ऐसे करके सुने? यस राइट। तो आईएसओ बेसिकली यूज होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए, उसी तरीके से 6 सिग्मा भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए यूज होता है। 6 सिग्मा कहता है कि 99.99% क्वालिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, अपने कस्टमर तक अच्छी चीज पहुंचाने के लिए। तो 99.99% का कॉन्सेप्ट पार्ले जी अप्लाई करता है, और पार्ले जी ने रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया हुआ है कि अगर कोई बिस्किट टूटा हुआ मिलता है बीच में, तो रोबोटिक आर्म्स से ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई करके हटा के अलग कर देती है वहां से। उसके लिए कोई लेबर की, कोई पर्टिकुलर बंदे की वहां पे होने की जरूरत नहीं है, राइट? रोबोटिक आर्म्स अपने आप ही उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे और वहां से हटा करके अलग रख देंगे, तो वो पूरा डिफेक्ट में चला जाता है और आगे यूज हो जाता है, लेकिन उस जगह से पैकेजिंग में जाने से बच जाता है। Am I clear? तो जो आपको कभी कभी अगर आप बिस्किट का पैकेट खरीदोगे और अगर उसमें कुछ डिफेक्टेड मिलता है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, जो फैक्ट्री से वहां तक मार्केट में आने पर और उसकी शॉप पे रखे हुआ होगा। अदरवाइज वो अपनी तरह से क्वालिटी मेंटेन करके ही उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। Am I clear? तो कहने का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरा के लिए, मान लिया प्रोडक्शन एरा अगर चल रहा है, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बन गए, उनको फॉलो करते हुए चलने की वजह से यहाँ पे मार्केटिंग को साइंस बोला गया है। समझ में आती थी चीज? ओके, यहाँ पे एक और चीज है जो लिखी हुई है, मार्केटिंग का नेचर क्या कहता है? मार्केटिंग इज अ गाइडिंग एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस। कि मार्केटिंग जो है वो एक बिजनेस एलिमेंट है। दैट मींस इट टेल्स द कस्टमर व्हाट इज टू बी डन, आई मीन इट टेल्स द मार्केटर व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, फॉर whom इट इज टू बी डन। Am I clear? क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। इससे पहले मैं यहाँ पे आपके पर्टिकुलर नेचर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना बंद करूं, थोड़ी सी चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा। एक कंफ्यूजन होगी आप लोगों के दिमाग में जो अभी तक बरकरार होगी, वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। एक टाइम तक लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है कि सर मार्केटिंग और सेल इज ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग, राइट? मार्केटिंग भी सेम है, सेल भी सेम है, लेकिन इसको एक बहुत छोटी सी चीज ऐसी है जो कि डिफरेंशिएट कर देती है। देयर इज अ थिन लेयर बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड व्हाट इज द डिफरेंस हियर? एनी स्टूडेंट? डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल, यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड मार्केटिंग, एंड हाउ कम सेल्स मैनेजमेंट इज डिफरेंट विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको बता दूं, अभी आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, 4th सेमेस्टर में सेल्स मैनेजमेंट पढ़ोगे। क्लियर? वो बात अलग है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, सो हु इज गोइंग टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग? Come on, anyone? Any rough guess? सर सेल वो होती है जो when we sell product or our goods, the activities which are involved, that is known as sales, and marketing, that how we are going to sell that product, means how we are going to attract customers. So our product is known as marketing. Very good, right? Okay,
Who else like to define it? Say So marketing means how we will produce the product, and sales means how we will sell the product. Okay. All right. Sir, we can What else? also say. Yes, Priyanshi. The marketing, how to represent the particular product, and sale, how that product will be sold by the particular customer. By the particular marketer, right? Sir. Okay. Yes, Diya. Sir, sales, we can say sales is the activity sir जिसमें sir buying and selling होती है sir of goods and services की, and sir marketing में sir ये है कि जो people interested होते हैं उसे लेने में, so हम ये कह सकते हैं. ओके, बट समवे देखो, आपको मार्केटिंग तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, एक पूरा प्रोसेस जो बिल्कुल प्रोडक्ट के आइडिया से लेकर के लास्ट तक जा रहा है, राइट? प्रोडक्ट के डिलीवर होने तक, उसकी रीसेल तक. यस स्मृति. सर वी कैन से मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्योंकि हमें हर बार मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपने लॉयल कस्टमर फाइंड आउट करने के लिए, और सेल्स को हम कह सकते हैं इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. Right, very good. Okay, yes. So this difference. Yes, Priyanshi. सर अगर सेल शॉर्ट टर्म प्रोसेस होगी तो बीच में फिर प्रॉफिट कैसे होगा कंपनी को? Right, very good. Okay. अब मैं इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ आप लोगों को. So what is the point here? Marketing is a long term process. Reason being because it will start from the very beginning and will go until the resale of the product happens. Am I clear? Okay, but why am I calling the sales to be a short-term product, short-term process? Reason being because it will occur for a short span of time on a different occasion. मान लिया कि एक बार मेरे पास कस्टमर आता है, केवल वो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम जिसमें मुझे उससे बात करके उसको वो प्रोडक्ट बेच देना है, वो सेल है, राइट? तो सेल इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग समवेयर, बट मार्केटिंग इज नेवर द पार्ट ऑफ सेल्स. इसमें आ गई थी चीज, क्योंकि मार्केटिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुकी है, आइडिया से लेकर के स्टार्ट हो गई है, रीसेल तक जाएगी, लेकिन सेल क्या है, बहुत छोटा सा हिस्सा है जो बीच में आकर करेगा, जिसमें मुझे बस अपने कस्टमर से बात करके उसको वो प्रोडक्ट बेच देना है. क्लियर? तो यहाँ पे जो आपने प्रियांशी ने कहा कि अगर सर सेल शॉर्ट टर्म प्रोसेस होगा तो बार बार सेल कैसे जनरेट होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस जरूर है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी रहती है. जब जब कस्टमर परचेज करना चाहेगा तब तक ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस के लिए आकर करेगा, और प्रोडक्ट की सेल होगी, और फिर वो प्रोडक्ट, वो जो प्रोसेस है सेल्स का वहां पे, वो खत्म हो जाएगा. Am I clear? फिर अगेन वो मार्केटिंग का प्रोसेस कंटिन्यू होने लग जाएगा कि जब तक रीसेल के लिए मैं उसको अट्रैक्ट ना कर लूं कस्टमर को, तब तक वो वहां पे आना जाए, वो फिर से मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वहां पे. Am I clear? ओके. एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे मैं आपको 2 वर्ड में बता दूं, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स. तो वो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, राइट? मान लिया कि एक कंपनी ने मोबाइल बनाने का सोचा है, उनके पास आइडिया है, उन्होंने फीचर्स के बेसिस पे मोबाइल बनाया, मोबाइल बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग करी, मार्केट तक पहुंचाया, शॉप पे पहुंच गया, कस्टमर्स को अवेयर किया, कस्टमर का इंटरेस्ट जनरेट किया, कस्टमर शॉप पे आया, अभी तक मार्केटिंग ही चल रही है, राइट? ओके. अब यहां से एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, यहां से जुड़ गया, वो है सेल. ठीक, उसमें कस्टमर और सेलर की बात हो रही है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज कर सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, वो चीजें हो गई, और उसने प्रोडक्ट वहां पे बेच दिया. बेचने का मतलब क्या था, जो प्रोडक्ट कंपनी का था उसकी ओनरशिप उसने लेकर ट्रांसफर कर दी कस्टमर को. तो जो प्रोसेस बीच में बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आकर हुआ है, जिसमें सेलर ने बायर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस फोन की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, राइट? तो वो ओनरशिप ट्रांसफर करने वाला जो मात्र प्रोसेस था 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का, जितने बीच में हमारे कस्टमर की और बायर की, सेलर की बात हुई है, वो प्रोसेस था सेल का, जिसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, यानी कि प्रोडक्ट मेरे से आपके हवाले हो गया. Am I clear? और मार्केटिंग क्या है, जैसे ही मैं अपने पास प्रोडक्ट परचेस करके लेके जा रहा हूँ, ऑल्दो हाँ ठीक है आप ओनर हो जाओगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, बट स्टिल क्योंकि वो प्रोडक्ट मैंने आपको बेचा है, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, उसमें आपको कोई परेशानी ना आए, उसको आप अच्छे से चला सको, उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई पार्ट कभी बदलना हो, उन सारी चीजों का भी देखभाल मुझे मार्केटिंग के प्रोसेस के अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी. Am I clear? बट इसके पूरे प्रोसेस के बीच में बहुत थोड़ी सी देर के लिए जो प्रोसेस अकर हुआ था, वो था सेल का, जिसमें मात्र हमने ट्रांसफर करा था ओनरशिप को. Am I clear? Okay. Yes, तो यहाँ पे आपने स्लाइड में लिखा हुआ है, आप उसको समझ लीजिए. मार्केटिंग इज अ सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. डेफिनेटली इनपुट किन चीजों का रहता है, आइडिया का, कॉन्सेप्ट का, मेथोडोलॉजी का, मेथड का, मनी का, मेंस का, जो हमने 5 M's डिस्कस किए थे, इन चीजों का इनपुट रहता है. प्रोसेसिंग किस चीज की है,
कि उस पे हमें फंडिंग करनी है, उसमें हमें पैसा लगाना है, चीजों को वहां पे एक जगह पे असेंबल करना है, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करना है, यानी कि अपने आइडिया को एक फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। वो जो हम पूरा काम कर रहे हैं प्रोसेसिंग में होगा, ठीक। एंड आउटपुट इज व्हाट द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ये एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बन के निकल रहा है वो प्रोडक्ट है। Am I clear? राइट तो आउटपुट क्या है, जो मैंने मेरे पूरे आइडियाज थे, कॉन्सेप्ट थे, रिसोर्सेज थे, उनके ऊपर जो प्रोसेसिंग करी है, उससे जो निकल के फिजिकल प्रोडक्ट बन रहा है, वही मेरा मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस का आउटपुट है। Am I clear? हाँ, इसमें एक चीज और है कि हमने प्रोसेसिंग एक काम पे और की थी। मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था स्टार्टिंग में इनपुट में कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो उसकी जो नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो प्रोसेसिंग मैंने उस पर कैसे करी, उसको अच्छी सर्विसेज देकर के प्रोसेसिंग करी थी। प्रोडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे, प्रोडक्शन का इस्तेमाल मात्र हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। अब कस्टमर को सेटिस्फाई मैं कैसे करूंगा, प्रोसेसिंग करके अच्छी सर्विसेज दे करके, उसको टाइम पे उसे पार्ट्स अवेलेबल हो जाए उस चीज के, राइट। और आउटपुट क्या होगा, जब उसको सारी सर्विसेज टाइम पे मिलेगी, उसका एक अच्छा सेटिस्फेक्शन बिल्डअप होगा, तो डेफिनेटली आउटपुट क्या निकल के आएगा, अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। Am I clear? समझ में आती थी चीज? ओके, यहाँ छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसका। मान लेते हैं कंपनी का अपना आइडिया, कॉन्सेप्ट, रिसोर्सेज, सारी चीजें अप्लाई हो चुकी हैं। उसके बाद जो डोमिनोज जैसी कंपनी है या पिज्जा हट जैसी कंपनी है, वो क्या सेल कर रही है, पिज्जा सेल कर रही है, राइट। ओके, ये उनका कॉन्सेप्ट था, इस पे उन्होंने पूरी मार्केटिंग करी, इनपुट लगा दिए। इनपुट में क्या क्या लगा दिया, अपना कॉन्सेप्ट, अपने रिसोर्सेज, अपनी मशीनरी, सब कुछ लगा हुआ है। ओके, उन्होंने साथ ही साथ रिसोर्सेज लगा दिए मुझे अवेयर करने में कि वी आर दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन पिज्जा मेकिंग। तो अगर आपको पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो आप हमसे ऑर्डर करिए, यही तो हुआ इसका मतलब। अब प्रोसेस बीच में जो होगा, प्रोसेसिंग का क्या है, मैंने ऑर्डर दिया जाकर क्या उन लोगों ने बनाया, तो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस उन्होंने यूज किया पिज्जा बनाने में, तो वो हो गई प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस के कॉन्सेप्ट पे। दूसरी चीज क्या थी, उन्होंने मुझे अच्छे से डील किया, अच्छा उनका बिहेवियर था मेरे से बात करते समय, प्रॉपर उन्होंने मुझे पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। उन्होंने मेरे से कहा कि ठीक है सर, आपको विद इन हाफ एन आवर पिज्जा डिलीवर हो जाएगा, या आप बैठ जाइए आपकी टेबल पे पहुंच जाएगा, एनीथिंग। तो उन्होंने जो बाकी चीजें करी थी वो क्या था, अच्छी सर्विसेज देना, राइट। और एंड टाइम पे आके जो आउटपुट निकल के आया वो कैसे, पिज्जा अगर उन्होंने अच्छा बना के दिया था तो यस, क्वालिटी ऑफ पिज्जा वाज गुड, वो एक आउटपुट हुआ। एक अच्छा पिज्जा जो बनकर के निकला प्रोडक्शन प्रोसेस से, अच्छी सर्विसेज देने से जो मेरा एक अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्डअप हुआ, वो आउटपुट हो गया मेरे अपने बीइंग अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। Am I clear? Okay, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। It was around 10:45, right? And I almost thought of ordering the pizza from Pizza Hut. तो मैंने all sudden उनका ऐप डाउनलोड कर लिया and पिज्जा वहां से ऑर्डर कर दिया। 10:45 हो रहे थे, by 11:30 पिज्जा was at my doorstep. पिज्जा उन्होंने मेरे को डिलीवर कर दिया 11:30 तक रात में। और 11:30 के बाद जब मैंने वो पिज्जा ओपन किया तो मैंने देखा it was what I ordered was cheese burst. तो मुझे जो रिसीव हुआ था वही नॉर्मल पिज्जा रिसीव हुआ था, राइट। अब मैंने सोचा कि ऑलरेडी 11:30 बज गए, भूख बहुत लग रही है, तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड ईटिंग दैट पिज्जा। बट मीनवाइल आई थॉट ऑफ कंप्लेनिंग आल्सो अबाउट द सेम थिंग कि जब मैंने चीज बर्स्ट किया था तो व्हाई डिड यू पीपल सेंड मी द नॉर्मल वन। एम आई क्लियर? आई वाज ऑलमोस्ट ईटिंग दैट पिज्जा, सो आई नेवर वांटेड टू ईट इट अगेन, बट मैंने कंप्लेन करी ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। मैंने कंप्लेन की उस चीज के बारे में कि सर आप लोगों ने एक्चुअली नॉर्मल पिज्जा भेज दिया है, मैंने चीज बर्स्ट ऑर्डर किया था। तो यू नो व्हाट हैपेंड, 11:30 पे पिज्जा मेरे पास आया था, जब मैंने कंप्लेन करी इट वाज ऑलमोस्ट 11:40 एंड बाय 12:35 द नेक्स्ट पिज्जा वाज एट माय डोरस्टेप। दैट इट वाज आवर मिस्टेक दैट वी सेंट यू द रॉन्ग पिज्जा व्हिच वाज द नॉर्मल वन। आपने चीज बस किया था तो वी आर सेंडिंग द अनदर पिज्जा। उन्होंने कॉल किया इस चीज के लिए और 12:35 तक रात में दूसरा पिज्जा मेरे गेट पे हाजिर था। व्हाई दे डिड सो, क्यों किया उन्होंने? बिकॉज फॉर देम माई कस्टमर सेटिस्फेक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पता था अगर हम अभी ये काम नहीं करेंगे हो सकता है ये रीजन बनेगा आगे चल करके ये कस्टमर दोबारा पिज्जा हमसे ऑर्डर नहीं करेंगे, या वो चीज कहीं ना कहीं माइंड में आई जाएगी। क्लियर है इतनी चीज, राइट? Yes, sir. Sent the another pizza and that built a good satisfaction in my mind कि ठीक है, company is so concerned about the customer satisfaction there. Am I clear? Okay. Yes, sir. The last comes marketing is a process series of interrelated function. Definitely ये पूरा process है जो starting से लेकर end तक काफी सारे अलग अलग functional processing से मिलकर के बना है। Clear? चाहे वो आइडिया की प्रोसेसिंग हो, अच्छी सर्विसेज देने की बात हो, या अच्छे प्रोडक्ट को डिलीवर करने की बात। क्लियर हो गई इतनी चीज? Yes, sir. Yes, sir. Before I start talking about the scope of marketing management, what I would like to tell you is कि कहीं ना कहीं scope covers the entire syllabus.
स्कोप क्या है? मतलब वो सारे एरियाज, वो सारी चीजें जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल रहता है, राइट? जहां जहां मार्केटिंग मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है वो पूरी सारी चीजें स्कोप कहलाती है, राइट? तो उसके बारे में, यानी कि क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस ही है एक तरीके से, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा उन टॉपिक्स के बारे में, बट वी विल बी कीप डिस्कसिंग इन अबाउट ऑल दोस टॉपिक्स इन डिटेल इन द फर्दर यूनिट्स. Am I clear? Okay, so I hope I have already eaten a much of your mind, so won't be disturbing you much for the day, and we will be talking about the scope of marketing management in the next class. Is that okay? Okay, sir. Just give me a moment so that I can stop sharing the PPT and can take a snapshot of the class. 18 students are here. Give me a moment. I hope हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया है अभी वो आप लोगों को समझ में आया होगा. Yes, sir. Yes, sir. And I hope the examples are also making it easy for you people to understand things. If there is any confusion, any problem in the classes, you can tell me also. Somewhere maybe the speed of my discussion or maybe the elaboration is going high, you can let me know. I know sometimes it happens with me. My speed goes so fast and sometimes it might go bouncer on your heads. तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी हो रहा है तो please you can tell me. Because online classes का scenario है, ऐसी चीजें होना बिल्कुल possible है ना? इस समय आप मुकुल सर को फ्रंट नहीं देख रहे हो, एक तरीके से एक एफएम रेडियो जॉकी की तरह सुन रहे हो, है ना? तो अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो. एनी कंफ्यूजन्स लाइक दैट? No, sir. No, sir. एनी प्रॉब्लम्स यू माइट लाइक टू शेयर अबाउट दिस? No, No? सर अब कभी कभी तो होता ही है, फिर एकदम से थोड़ी क्या देखेंगे. अच्छा चलो ठीक है, ओके गुड फाइन. तो आप लोग क्या करोगे, जो जो हम डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उनको अपने पास एक जगह नोट डाउन करते रहो, एग्जांपल्स को नोट डाउन करते रहो, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू. ये याद रखिएगा, जब जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन, जब क्लासेस खुल भी जाएंगे तब भी मैं उनको ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा. तो जो पढ़ चुके होंगे, मेरे पास स्क्रीनशॉट होंगे, मैं उन्हीं को रैंडमली पिक करके उन्हीं से पढ़वाऊंगा क्लास में. Am I clear? Yes. Yes, sir. Okay, very Yes, good, sir. fine. So I hope I have already eaten your minds, people, much. Will not be disturbing you for more. So have a great day and have a good time. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.